विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कल्चरल शो संस्कृति यात्रा। आज के अपने पहले सेगमेंट विशेष में हम आपको लेकर चल रहे हैं वहां जहां म्यूजिक, आर्ट, मिथ और डिवोशन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं केरल की, जहां की सबसे समृद्ध और प्राचीन अनुष्ठान परंपराओं में से मुदियेत्तु को एक माना जाता है। सेंचुरीज से ये फोक रिचुअल आर्ट फॉर्म पौराणिक कथाओं के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत के मैसेज को सोसाइटी तक पहुंचाता रहा है। अधिकतर ये इनैक्टमेंट केरल के काली मंदिरों में होता है। इस रिचुअल की शुरुआत कलमेजुदुम पत्तुम से होती है, जो कि एक एंशिएंट रिचुअल फ्लोर आर्ट है, जिनमें 5 नेचुरल कलर्स पाउडर के इस्तेमाल से देवी देवताओं की ट्रेडिशनल ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। चेंदा, मादलम, कुजाला और इलाथलम जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एनैक्टमेंट होता है, जिसमें कैरेक्टर्स अपने स्किल्स और डिवोशन से ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस देते हैं। तो आइए देखते हैं फिल्म मुदियेत्तु एंड कलमेजुदुम पत्तुम के कुछ अंश। Kerala, known for its lush green landscape, lagoons, mountains, deep valleys, ponds, rivers and coconut trees that connect the heavens with the earth. Age-old myths reverberates through these forest groves. The myths come alive through performance of art forms. Kerala has a vast repertoire of classical, folk, traditional and ritualistic art forms. One amongst these is Mudiyettu. Just prior to a Mudiyettu performance, Kalamirithu, drawing of image of Devi with vegetable powders is completed, where the deity is supplicated. Kalamirithu is an ancient art form. Kalamirithum Patum, drawing of image of a deity and eulogizing her, his divine glories, symbolizes the 3 cycles of life. Drawing of figures of deities symbolizes Shrishti. Songs, eulogy, and puja, worship, represents Sthiti. A facing of the drawn figure or painting is Samharam. Drawing of columns begins with creating a sacred space. Thereafter, a red canopy is spread overhead. Puja or worship to Lord Ganesh is offered by priest. Songs in praise of Ganesh, Saraswati, Krishna, Shiva and the drawn deity is sung in accompaniment of Nada Tandrini, a string instrument, and musical instruments. After invoking the god, goddesses with various rituals, the drawn figure is effaced by Kurups, the spirit of the deity, in the case of all columns except that of Bhadrakali, which will be desecrated by Maras, master of ceremony, leaving no painting or the image but only the idea and a lit lamp against a static icon. Consecrated space returns to mundane space, but not without being electrically charged with explosion of energies of the night before. We have documented 4 columns dedicated to 4 Shaiva Murtis, deities, that is, Devi, symbolic in the shape of a bangle, Bhadrakali, nature, Vetikurmagan, Purusha, and Aryanambi, Aryananga,
and Rudra Bhayangari, that is nature and man. These figures are drawn with 5 basic colors such as white with rice powder, black with burnt paddy husk, red with turmeric powder mixed with lime, green with dried coral leaves, and yellow with turmeric powder. Vatta, circular column, signifies the undefined and omnipresence form of Devi. Drawing of this column is in the shape of an 8-petal lotus. Devotees offer Vatta column to Tiruvalayyanadu Devi, who is considered to be an incarnation of Tirumandankunad Bhagavati for attainment of moksha or liberation from rebirth. Presiding deity of Tiruvalayyanadu Devi temple is installed in the form of a Valakanadi, a metal disc with long handle. She is amongst the Saptamathrus, the 7 mothers. Narubi Parama Bhairavi Shri Bhadragali. Born from the third eye of Lord Shiva for the sole purpose of killing demon Dariga, Kali proceeds to Kailash to place the severed head of the demon at her father's feet. Sensing the uncontrollable fury of his daughter, Lord Shiva gets his daughter's image drawn on a way by artists with a view to compose her. Kali, seeing an image and hearing the artist's songs in praise of her power and beauty, is now pleased and composed. The art of Kalamirithu, drawing with powders, is believed to have begun in Tirumandankunad Devi. The master Marar erases the drawn image first, leaving the face and breast portions, and the powder is distributed as prasadam, offerings to the devotees. Mudiyettu,
is performed for overpowering the desire of brute power. It signifies the victory of good over evil. Mudiyettu, carrying of the crown, portrays the assassination of Darika by Kali, thus restoring the cosmic balance. This ritualistic performance by Marads or Kurups lasts for 20 hours. There are two styles of Mudiyettu, Southern and Northern. We are presenting a combined version of the play without losing its sequences of presentation, its essence and flavor. Vetikura Magan was born to Lord Shiva and Goddess Parvati. A valorous warrior and a skilled archer unparalleled, the boy grew in the forest. Fearing threat to his seat of power, Lord Indra pleads to Lord Mahavishnu to diminish the capability of Vetikura Magan to use his arrow and bow. Lord Mahavishnu, with a tricky plan, makes the boy unable to use his weapons anymore and advises him to move to the land of Sahyadri, where devotees still sing his praises. The murals depicted on these walls are 1,500 years old and belong to the Mushika dynasty. வாழ்க வாழ்க நீந்தேன். In the whole world, there is only one temple dedicated to the deities Aryanambi, Aryananga and Rudra Bhayangari. Nandikeshwara gets married to Rudra Bhayangari, the red-complexioned maid, who appeared before Lord Shiva during Santivela evening celebrations in Kailash. The child born to them was abandoned in the forest as it was a lump of flesh. With Lord Shiva's blessing, the child gained all the limbs and got married to Aryananga. Aryanambi, his wife Aryananga, and mother Rudra Bhayangari moved to the land of Parashurama, Kerala, on Lord Shiva's advice. Each deity is drawn in different colors representing their basic mood. ഉപജീവിക്കத் തുടങ്ങിനാണല്ലോ അക്കാലത്ത് കൈലാസത്തിങ്കിൽ മഹാദേവൻ തിരുവടിയും നാന്തികേശ്വരനെ വിളിച്ചരുളി ചെയ്തു. എടോ നാന്തികേശ്വര, നീയേ നിന്റെ കൊറവയെ ഇങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം എന്ന്. तो देखा कैसे मुदियेत्तु आज भी अपनी एंशिएंट हेरिटेज और कल्चरल आइडेंटिटी को जीवित रखे हुए है। अब बढ़ते अगले सेगमेंट धरोहर की ओर। भारतीय क्लासिकल म्यूजिक के कुछ ऐसे स्वर हुए हैं जो कानों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाते हैं। आज धरोहर में हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी ही आवाज से, आज के समय की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका श्रुति सादोलिकर जी से, जो कि जयपुर अतरौली घराना की रिनाउंड रिप्रेजेंटेटिव हैं। ख्याल गायकी की स्पेशलिस्ट श्रुति सादोलिकर ने अपने पिता पंडित वामन राव सादोलिकर से पहली शिक्षा प्राप्त की और अपने परिवार की म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाया। देश विदेश में कॉन्सर्ट्स के लिए आप मोस्ट सॉट आफ्टर वोकलिस्ट में से एक हैं। संगीत नाटक अकादमी समेत कई अवार्ड से सम्मानित श्रुति जी की मधुर, संवेदनशील और आत्मीय आवाज भारतीय शास्त्रीय संगीत की रिचनेस का परिचय कराती है। नोटेड वोकलिस्ट होने के साथ ही एक वैल्यूएबल फैकल्टी और एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी श्रुति जी हैं। कई वर्षों तक भातखंडे विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर रही। तो आइए सुरों के इस अनफॉरगेटेबल जर्नी पर चलते हैं और आनंद लेते हैं श्रुति सादोलिकर जी की गायकी का।
चोर प्यार चित चोर जिया में बसी कैसे फंसी जिया में बसी कैसे फंसी जिया में बसी कैसे फंसी आन बान जिया में लगी आग अभी आपने सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका श्रुति सातोलिकर की मधुर और भावपूर्ण प्रस्तुति का आनंद लिया। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर, जहां भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक प्रोजेक्ट चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका मकसद है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना ताकि गांव की विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा सके। एक ऐसे ही गांव की यात्रा पर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित कल्पा की ओर। कल्पा एक कृषि प्रधान गांव है और एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के अधिकतर परिवारों में हैंडलूम पर काम किया जाता है। गांव में हर साल स्टेट लेवल ट्राइबल डांस और हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल के अलावा विशु मेले का भी आयोजन होता है। अपने पुराने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध कल्पा गांव से किन्नौर कैलाश की चोटी बेहद खूबसूरत दिखती है। तो आइए चलते हैं कल्पा गांव की ओर। कल्पा समुद्र तल से 2759 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ ये गांव पर्यटकों को हिमाचली संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक खूबसूरती के अकल्पनीय अनुभव प्रदान करता है। कल्पा गांव में स्थित प्राइमरी विद्यालय की स्थापना
सन 1822 में हुई थी। कल्पा गांव उच्च गुणवत्ता वाले सेबों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ चिलगोजा के पेड़ भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिसके फल यहाँ के लोगों के लिए आय का एक अच्छा साधन है। कल्पा गांव में प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय जनजाति नृत्य एवं शिल्प महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में किन्नौरी लोक कलाओं और शिल्प की प्रदर्शनी लगाई जाती है। कल्पा गांव में प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में विशु मेले का आयोजन किया जाता है। महाभारत कालीन इस परंपरागत मेले में ग्रामवासी मनोरंजन के लिए तीर चलाते हैं। 18वीं शताब्दी में कल्पा गांव चीनी गांव के नाम से जाना जाता था। कल्पा गांव में स्थित नारायण नागिनी मंदिर अपनी लकड़ी की खूबसूरत कारीगरी के लिए जाना जाता है। कल्पा गांव में स्थित चामुंडा देवी मंदिर को कोठी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कल्पा गांव से किन्नौर कैलाश की बर्फ से ढकी चोटी बेहद खूबसूरत दिखती है। हिंदू और बौद्ध संस्कृति का अद्भुत समागम लिए यहाँ की संस्कृति और चित्त को शांति प्रदान करता हुआ यहाँ का मनोरम वातावरण पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सजेशंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। अगर आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ उसे जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। फिर होगी आपसे मुलाकात संस्कृत टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जाते जाते आप देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई दिल्ली में फ्लूट यानी बांसुरी पर आधारित एक विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसका विषय था भारतीय कला धरोहर बांसुरी के विशेष संदर्भ में। आईजीएनसी के कला दर्शन विभाग द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में प्रसिद्ध बांसुरी वादक चेतन जोशी ने भारतीय परंपरा में बांसुरी की अनवरत यात्रा और उसकी सांस्कृतिक निरंतरता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, बांसुरी हम सभी जानते ही हैं कि भारत की कला धरोहर में एक बहुत विशेष स्थान रखती है। आज से ही नहीं, सतयुग से आप देखिए, वैदिक काल जिसको हम सतयुग कहते हैं, सतयुग में बल्कि वह वेद तो उससे भी पहले हुए। सृष्टि के प्रारंभ से वेद ट्रांसफर हुए, वो बने नहीं, ट्रांसफर हुए। तो सतयुग में बांसुरी का वर्णन है। द्वापर, त्रेता में रामायण काल, द्वापर में श्री कृष्ण का काल और फिर वर्तमान कलयुग। इतनी लंबी परंपरा शायद ही किसी वाद्य की है। कार्यक्रम में उपस्थित आईजीएनसी के डीन एवं कला निधि विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने कहा, बांसुरी जो हमारे भारत की आवाज़ है और श्वास है, तो ये बहुत ही सही वक्तव्य है। और इसको आई थिंक आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमारी जो नई पीढ़ी है उसको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत ही मतलब इसके लिए ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, ना कोई बहुत बड़ी, लेकिन ज़रूरत ये है कि कैसे इसको हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ से कैसे नई पीढ़ी को हम लोग उसमें इंटरेस्ट पैदा करें। क्योंकि जो जिस तरह की शांति और जो आनंद बांसुरी को सुन के मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको, और हर वर्ग, हर उम्र, हर किसी को पसंद आने वाली चीज़ है। वहीं कला दर्शन विभाग की प्रमुख प्रोफेसर ऋचा कंबोज ने भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण में आईजीएनसी द्वारा आयोजित ऐसे व्याख्यानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारी कला, ये किसी भी राष्ट्र का एक कहना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी होती है। कहते हैं कि पेड़ उतना ही मजबूत होता है जितनी गहरी उसकी जड़ें होती हैं। हमारी संस्कृति बहुत विविध है, बहुत व्यापक है, इसके बहुत पक्ष हैं। आप कितना भी इसको जान लें, कितना भी आप इसको सुन लें, और इतनी विधाएं हैं, चाहे वो वाद्य यंत्र हों, चाहे आर्ट फॉर्म्स हो, चाहे विजुअल आर्ट्स हो, कि आप कितना ही जान लें, आपको कभी ना कभी आपको लगेगा कि अभी और बहुत कुछ रहता है जो हमने जाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, जिसकी बारीकी को हम अभी भी नहीं जानते हैं। बहुत सारी ऐसे वाद्य यंत्र जो विलुप्त हो गए,
विधाएं जो विलुप्त हो रही हैं, विलुप्ति के कगार पे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी संस्कृति के क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर गोवा की संस्कृति, परंपराओं और जीवन की रंगीन झलकियों को समर्पित फेसेस ऑफ गोवा फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। IGNCA के रीजनल सेंटर गोवा द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 18 से 22 मई 2026 तक गोवा के रविंद्र भवन सांखली में प्रदर्शित हुई। प्रदर्शनी में गोवा की लोक संस्कृति, विरासत और आम जनजीवन को तस्वीरों के माध्यम से खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। असम में पांडुलिपि विरासत, उसके संरक्षण और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय था रिविजिटिंग असम्स मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, चैलेंजेस, प्रैक्टिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। इस संगोष्ठी का आयोजन IGNCA के रीजनल सेंटर गुवाहाटी, कॉटन यूनिवर्सिटी के असमिया विभाग और असम सरकार के ऐतिहासिक एवं प्राच्य अध्ययन निदेशालय के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में विद्वानों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने असम की दुर्लभ पांडुलिपियों, उनके संरक्षण की चुनौतियों और भविष्य में शोध की संभावनाओं पर गंभीर और सार्थक चर्चा की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर IGNCA के रीजनल सेंटर बेंगलुरु द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए प्रकृति संरक्षण और हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।